Welcome back, my dear student, and today we are going to learn our first chapter, linear equation in two variable. Before that, we will learn what is an equation. So first I will write here equation. To explain an equation, I will draw here one diagram. This is a square, and properties of square are all sides are equal and all angles are equal and 90 degree. Suppose this side is 10 centimeter, then this side will also 10 centimeter, this side will also 10 centimeter, this side will also 10 centimeter. And if I ask you a question, what is a perimeter of this triangle, this square, then you will simply add 10 plus 10 plus 10 plus 10. Or in another word, you can say 4 multiplied by 10 is equal to 40. Now I will change the side of this square. New side is a 15 centimeter. Then new perimeter will be 15 plus 15 plus 15 plus 15, or 4 multiplied by 15 is equal to 60. Again, I will change the side of this square. New side is 20 centimeter. Then new perimeter will be 20 plus 20 plus 20 plus 20 is equal to 4 multiplied by 20 is equal to 80. Now, if we observe these three equations, right, then in this equation, this 4 is a constant and this side is changing frequently. So, can I write this perimeter of square is equal to 4 multiplied by side? Again, I can write, if I give one variable to side, then I can write here 4 multiplied by x, or I can say 4x is equal to perimeter of square. If I take first perimeter, then how can I write here? 4t is equal to 4x. 4t is equal to 4x. Now I can say this 4 and 4t is a constant. This x is a variable. And this sign is arithmetic operator or equal to sign. Arithmetic operator or equal sign. Equal sign. Then how can we write the definition? Definition will be an equation is a combination of constant and variable. Constant and variable with arithmetic operator, and equation
always shows that two sides are equal. Means RHS is equal to LHS. We will take one more example. 9x plus 3 is equal to 30. Another one example, 10x plus 5 is equal to 15. In this equation, x is a variable and 9 is a constant, or we can say coefficient of a variable. Now we will learn linear equation in two variable. Linear equation in two variable. If we observe this and this equation carefully, then we can see here is a only one variable, and which is x. We can take any variable other than the x. If we observe this word carefully, then this shows line. Line means any equation through which we can draw a line. But how can we draw a line? We will learn in next topic. Before that, we just have to learn the linear equation. Now I will write here one equation, ax plus by plus c is equal to 0. Ax plus by plus c is equal to 0. Where a and b is not equal to 0. क्या नहीं होना चाहिए? a and b equal to 0 नहीं होना चाहिए. And x and y are any variable. And power of degree of x and y should be 1. क्या क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए? a and b 0 नहीं होना चाहिए. x and y की जो पावर है वो ऑलवेज 1 होनी चाहिए. अब ये अगर एग्जाम्पल इक्वेशन हम ऑब्जर्व कर देते हैं तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल मिल रहे हैं. एक तो x एंड अनदर वन क्या है? y. और दोनों के दोनों वेरिएबल की पावर जो है वो क्या है? 1 है. a, b एंड c तीनों को तीनों कौन से? एनी नंबर्स है. एक एग्जाम्पल लेते हैं. 9x plus 7y plus 39 is equal to 0. और 4m plus 3n is equal to 12. ये दोनों के दोनों क्या हो गए? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहाँ पे x एंड y दो वेरिएबल है, दोनों की भी पावर 1 है. और यहाँ पे m एंड y वेरिएबल है एंड दोनों की भी पावर क्या है? 1 है. वैल्यू ऑफ a एंड b 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली है. और यहाँ पे a की वैल्यू 4 एंड b की वैल्यू 3 है. दोनों की दोनों वैल्यू 0 नहीं है. अब हम लर्न करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म
of linear equation in two variable है, ax plus by plus c is equal to 0। अब पेज नंबर 1 पे कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं और हमें फाइंड आउट करना है either the given equations are linear equation in two variable or not linear equation in two variable। यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, टोटल 7 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और चेक करना है कि either the following equations are linear equation in two variable। अब उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि हमें कंपेयर करने के लिए आसान हो जाए। तो क्या है ये, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगा टू वेरिएबल। अब 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। अब 4a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, x और y की जगह पे कौन से वेरिएबल है, m एंड n, और दोनों के दोनों की भी पावर क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सेकंड वाला एग्जांपल देख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे देखो a एंड b की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन x का जो पावर है वो 2 है और यहाँ पे y का पावर कुछ नहीं, मीन्स 1 है। और डेफिनेशन में हमने लिखा था कि x एंड y और दोनों जो भी वेरिएबल हो दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे नो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थर्ड वाला √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 0। दोनों के दोनों भी वेरिएबल है, दोनों के दोनों वेरिएबल की भी पावर 1 है। a की वैल्यू √2 है एंड b की वैल्यू √5 है, इसलिए हम बोल सकते हैं यस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन ये अगर इस टाइप में होता √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16, तो पावर ऑफ x रूट में मीन्स क्या हो जाती थी, 1/2 हो जाती थी। इसलिए हम बोलते थे कि नहीं, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो सकता। अभी फोर्थ वाला एग्जांपल देखते हैं, 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दो वेरिएबल है x एंड y, दोनों की भी पावर 1 है, लेकिन a की वैल्यू क्या है, 0 है। और हमने डेफिनेशन में लिखा है, लर्न किया है कि a एंड b शुड नॉट बी 0। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि नो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। फिफ्थ वाला देख लेते हैं, 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या था, a की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, b की वैल्यू 0 दी है। दोनों भी वैल्यू अगर 0 है या फिर दोनों में से एक भी वैल्यू अगर 0 है, हम बोल सकते हैं कि नो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अब डायरेक्टली हम इसे नहीं कह सकते, अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 4x माइनस 1 प्लस 5y रेस्ट टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 4, और ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनता डायरेक्टली, लेकिन हम इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे मैं लिख लेता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/y इज इक्वल टू 4। इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, लेट 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y is equal to n, and hence my new equation will be 4m plus 5n is equal to 4। और अब मैं इसे कह सकता हूँ yes this is a linear equation in two variable। लास्ट नंबर का इक्वेशन दिया हुआ है, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दो वेरिएबल है x एंड y, a एंड b की वैल्यू भी 0 नहीं है, पावर भी सबकी 1 है, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों वेरिएबल एक टर्म में दिए हैं। दोनों के दोनों वेरिएबल अलग अलग टर्म में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन से
एक ही टर्म में दिए हुए, इसलिए हम बोल सकते हैं कि नहीं, नो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेज नंबर 2 पे हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन 5x minus 3y is equal to 8 and 3x minus y is equal to 2। अब सॉल्व करना है, मीन्स हमें वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y क्या कर देनी है, फाइंड आउट कर देनी है। अब इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इसे बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व करते टाइम एट अ टाइम हम दोनों x एंड y की वेरिएबल फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें 1 बाय 1 वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है, और दूसरा जो भी कोई भी एक वेरिएबल है उसे हमें जीरो करना होता है। अब जीरो वेरिएबल कब हो जाएगा, जैसे कि माइनस 10x प्लस 10x, माइनस 10x प्लस 10x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, माइनस 4m प्लस 4m, दोनों के दोनों भी क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, 20 प्लस माइनस 20, ये भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब यहाँ पे हम इसे ऑब्जर्व कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, दोनों के दोनों। अब यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे माइनस वाई यहाँ पे प्लस वाई, तो ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाता है। लेकिन इक्वेशन 1 में कोएफिशिएंट जो है वो 1 है और यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 3 एंड हिंस 3x multiplied by 3 plus 1x multiplied by 3 is equal to 2 multiplied by 3, 3 3s are 9x plus 3x is equal to 6, और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या कर देता हूँ, नाउ एड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है मेरा, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये कौन सा है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब माइनस 3y प्लस 3y विल बी कैंसल, 9x प्लस 5x इज इक्वल टू 14x एंड 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 इस साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 14 डिवाइडेड बाय 14 एंड हिंस x इज इक्वल टू 1। अब ये जो x की वैल्यू मिल गई है, इसी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड, हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम फर्स्ट इक्वेशन सिंपल है इसलिए फर्स्ट में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 5 इंटू 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 8, माइनस 3y इज इक्वल टू, इस पाई को इस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, 8 माइनस 5, माइनस 3y इज इक्वल टू 3, माइनस y इज इक्वल टू 3 को इस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, 3/3, माइनस y इज इक्वल टू 1 एंड हिंस
y इज इक्वल टू -1। ये आ गई हमारी वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सोल्यूशन क्या होगा हमारा, x y इज इक्वल टू 1, -1। सॉल्व 3x plus 2y is equal to 29 and 5x minus y is equal to 18। Solution 3x plus 2y is equal to 29, इसे हम बोल देते इक्वेशन नंबर 1, and 5x minus y is equal to 18, इसे बोल देते इक्वेशन नंबर 2। Let's solve the equation by eliminating y. Fill the suitably boxes below. Multiplying equation second by 2। इक्वेशन सेकंड को हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5x मल्टीप्लाइड बाय 2, y मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 18 मल्टीप्लाइड बाय 2। 5 2 था 10x, 1 2 था 2y, 18 2 था 36। लेट्स ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। इसे हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन थर्ड। व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट, 3x minus 2y is equal to 29 एंड इक्वेशन थर्ड क्या है, 10x minus 2y is equal to 36। minus 2y plus 2y cancel, 10x plus 3x is equal to 13x, 9 plus 6 is equal to 15, 1 carry, 2 plus 1 3, 3 plus 3 6, 65। तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं। x इज इक्वल टू 65 अपॉन 13, 13 1 जा 13 5 जा, x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ x इज इक्वल टू 5। सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। 3 इंटू x, x की वैल्यू क्या है 5, प्लस 2y इज इक्वल टू 29, 3 5 जा 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 29। अब इसे इस साइड में ट्रांसफर कर देते, प्लस का क्या होगा माइनस, 2y इज इक्वल टू 29 माइनस 15, 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 विल बी 4 एंड 2 माइनस 1 विल बी 1। अब इसे किस सॉल्व में करेंगे, y इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 एंड हिंस y इज इक्वल टू 7 and hence y is equal to 7। Solution of equation x y is equal to x की वैल्यू क्या आई हुई है 5 एंड y की वैल्यू क्या आई हुई है 7। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो अवर चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।